we'll focus on the chemical properties of nitric acid, and we'll see that what all properties we can cover it in nitric acid. So as you know, we have already discussed about the lab methods, the industrial methods. Now we have to focus on the chemical properties of it. So there are few chemical properties, but this is one of the very important chemical property of nitric acid, oxidizing agent, or it has an oxidizing nature. So nitric acid acts as a good oxidizing agent, or it has a oxidizing nature, because nitric acid undergoes decomposition. This thing we have already discussed, कि when you are taking the nitric acid, it should be in moderate and concentrated condition. It undergoes decomposition means to break. So this particular nitric acid break down, and it gives you water and nitric oxide as well as your nascent oxygen. So this way you get it your oxidizing nature of nitric acid. So, and this particular nascent oxygen, nascent mean a single atom of oxygen. This chapter is related to nitric acid, you are getting nascent oxygen, but in some other chapters you will get nascent chlorine is there, nascent bromine is there, but we are focusing on this thing, oxidizing nature of it. So it is giving an oxygen atom, and single atom of oxygen is been there, so it works as a nascent oxygen. Now this, what is the work of this nascent oxygen? This nascent oxygen is capable to oxidize other metals, non-metals and other compounds. So it has a very good effect of basically you can say ना, nitric acid itself undergoes, अगर अपने आप में देखें तो क्या हो रहा है, it is losing the oxygen atom, तो itself it is going for reduction. तो nitric acid itself going for reduction, but it is giving you a nascent oxygen. So this particular nascent oxygen is helpful to oxidize other metals or non-metals, right? So we get a number of you can say reduction products also, है ना. जैसे यहाँ पे हमें NO मिला है, कहीं हमें नाइट्रोजन, मैंने कहीं कहीं रिएक्शन में बताया NO2 मिलता है ना. हमने देखा था जब नाइट्रिक एसिड का डिकम्पोजिशन हमने कराया था, तो हमने देखा था कि इट वाज गिविंग यू NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. दैट रिएक्शन ऑल्सो वी हैव सीन. So this is the other equation which we have discussed when we were doing that nitric acid. When you obtain in the lab, it is colorless, but it get decomposes because it gives you this thing. It give you NO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है आपको, जिसकी वजह से क्या था वो कलरलेस से येलोइश ब्राउन, येलोइश ब्राउन स्टिंग्स, उसमें कलरेशन आ जाता है ना. तो ये दो रिएक्शन हम पढ़ी, लेकिन बट ओवर हियर फॉर द ऑक्सीडाइजिंग नेचर वी हैव टू फोकस ऑन द मॉडरेट कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड विच गिव्स यू नाइट्रिक ऑक्साइड. ठीक है, water is been there, and it's also giving you nascent 3 molecules of nascent oxygen. Now this nascent oxygen is very important for the you can say na, for oxidizing the other substances or like metals and non-metals. So there are many reactions in your books, but you have to focus according to your syllabus, reduced syllabus. So let's go on it, and you will see over here na, it is giving you nitric oxide, but this side it is giving you नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल रहा है. तो यू आर सीइंग कि दिस नाइट्रिक एसिड सेल्फ इज गोइंग फॉर रिडक्शन. इसका रिडक्शन हो रहा है. देखो यहाँ 3 ऑक्सीजन थे, यहाँ एक ही ऑक्सीजन रह गया, यहाँ 3 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन. तो बेसिकली क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना. इसका नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर डिक्रीजिंग. ओवर हियर वी हैव 3, ओवर हियर इट्स 1, ओवर हियर इट इज़ 3, ओवर हियर इट इज़ 2. So this way you can see that reduction of nitric acid is taking place, and it is giving you different compounds. I have shown you these 2 compounds, but there are different compounds. It's not only nitric oxide, it's not only nitrogen dioxide, there are other also. N2O is also being obtained. तो जितने भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, you can get it over here. Now let's come to the part कि how it go for oxidation. So oxidation of non-metals, if you talk about नॉन मेटल्स के केसेस में जो हमारे कोर्स में है, दैट इज़ ओनली इफ़ यू आर देयर, बट इट ओवर हियर यू हैव टू रिमेंबर दैट नाइट्रिक एसिड, डोंट गेट कंफ्यूज, क्योंकि सेम रिएक्शन इज कमिंग विद द कॉन्सेंट्रेटेड एंड हॉट नाइट्रिक एसिड, एंड इवन इट्स वेरी डिफरेंट. मतलब मेटल्स या नॉन मेटल सेम रहेंगे, बट नाइट्रिक एसिड कंडीशंस आर डिफरेंट. सो फर्स्ट वी आर टेकिंग द हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड. ये कंडीशन होनी चाहिए नाइट्रिक एसिड की कि हॉट भी हो, कॉन्सेंट्रेटेड हो. देन व्हाट इज़ द आउटकम एंड व्हाट ऑल नॉन मेटल्स यू हैव टू फोकस इन इट. कार्बन इज़ देयर एंड सल्फर इज़ देयर, दीज 2 आर देयर.
Now this portion is very important because reaction is also asked. They ask you what is the gas that is liberated, तो वो भी आपको देख के चलना है. तो लेट्स फोकस ऑन इट. जैसे आपने ये नॉन मेटल आपने लिया है, नॉन मेटल का रिएक्शन आपका यहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ होता है. ठीक है, यहाँ पे हॉट है और कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशन है इसकी. क्या कुछ कंपाउंड्स, देखो ये कंफ्यूज मत होना क्योंकि यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं आपको याद रखना है. यू विल गेट अ ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट, वाटर एंड योर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. नाउ यू कैन सी द टीचर विल आस्क यू नेम द गैसेस. सपोज करो हमने कोई तुम्हें रिएक्शन दे दिया कुछ भी कि व्हाट हैपन, या नेम द गैस दैट इज ऑब्टेन व्हेन कार्बन रिएक्ट्स विथ हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड. तो यू शुड नो द गैस इज व्हाट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हैज़ अ स्पेसिफिक नेचर. इट इज़ अ रेडिश ब्राउन गैस. यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल्सो. ठीक है, तो ये कैसी होती है आपकी, रेडिश ब्राउन गैस होती है और नाइट्रोजन ये डाइऑक्साइड गैस निकल रही है. तो ऑब्जर्वेशन में आपका क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कलर क्या हो जाएगा इसका, रेडिश ब्राउन गैस इज ऑब्टेन. सो दिस इज योर ऑब्जर्वेशन. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ लेट्स कम ऑन द रिएक्शन पार्ट. सो वेदर इट इज़ कार्बन और इट इज़ सल्फर, द गैस दैट इज ऑब्टेन इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ऑब्जर्वेशन कलर गैस का क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, रेडिश ब्राउन कलर. राइट, नाउ लेट्स राइट डाउन द रिएक्शन पार्ट. Now carbon reacts with this thing, nitric acid. It should be hot and concentrated, so it give you oxidized product. अब oxidized ये भी टीचर पूछ सकती है कि name the oxidized product that is being formed. So over here please remember कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड will be formed over here, plus water तो है ही और NO2 तो है ही. Now balancing you can do it by your own. So balance it by 4, then put 2 over here. 4 इधर भी आ जाएगा आपका, कार्बन तो आपका सिंगल ही है तो नो इश्यूज ऑफ इट. सो दिस वे यू कैन बैलेंस योर रिएक्शन. तो व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट विल कम इफ टीचर आस्क यू गैस, देन व्हाट विल बी योर आंसर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट कम्स इन द बोर्ड. इफ टीचर आस्क यू ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में इट्स वेरी, ऑब्जर्वेशन होता है यू हैव टू सी विथ योर सेंस ऑफ ऑर्गन. तो जो दिखता है, अब दिखेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर. ठीक है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म्ड या इवॉल्व विच इज़ रेडिश ब्राउन इन कलर. राइट, if teacher ask you कि tell me which is your oxidized product, then you will write down name. पूछती है तो कार्बन डाइऑक्साइड. if the question is coming in terms of name, children please remember it, name means nitrogen dioxide. you will not write down NO2. ठीक है, if you are writing NO2 you will get 0 in your board examination. सो नेम में अगर स्टेट है तो आप दे सकते हैं. सो इज़ बेटर यू राइट डाउन द नेम एज वेल एज द फॉर्मूला. बट नेम के केस में ओनली नेम इज़ एक्सेप्टेड, नो फॉर्मूला. इफ़ यू विल राइट डाउन NO2 देन यू विल गेट 0. ठीक है, दिस इज़ नॉट द आंसर इन केस ऑफ नेम. नेम इज़ नेम, बट इफ स्टेट इज़ देयर देन यू कैन राइट डाउन द फॉर्मूला. बट इट इज़ माई पर्सनल एडवाइस कि व्हेन स्टेट कम्स, जैसे स्टेट आ जाए, स्टेट, तो स्टेट में आप नाम भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला भी लिख सकते हैं. यू राइट डाउन बोथ द थिंग्स बिकॉज ह्यूमन टेंडेंसी समटाइम्स यू आर राइटिंग वेरी फास्ट, तो यू चेंज योर फॉर्मूला. से कभी जल्दी लिखने के चक्कर में हम वी हैव टू राइट डाउन NO2 बट वी आर राइटिंग ये दिस वे. तो दिस इज़ रॉन्ग. 2 इज़ नॉट कमिंग हियर, 2 इज़ कमिंग ओवर हियर. सो प्लीज़ you are doing it, do it in a proper manner. Now let's come to the sulfur part. Same way I am writing down the reaction now it is clear. sulfur के केस में नाइट्रिक एसिड जो बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड इट फॉर्म्स, ये ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है. फिर आपका वाटर रहेगा प्लस 6 NO2 विल बी देयर. चिल्ड्रन प्लीज़ फोकस ऑन इट. देन इट इज़ 2. ठीक है, तो ये आपका ये नाइट्रिक एसिड है और ये आपका ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है. दिस इज़ द ऑब्जर्वेशन गैस है और ये कलर भी आपको यहाँ यू नो. नाउ दिस इज़ क्लियर व्हेन यू आर यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड एंड हॉट नाइट्रिक एसिड. नाउ नाइट्रिक एसिड वी आर टेकिंग फॉर द मेटल्स. अब हम मेटल्स के केस में लेके चलेंगे. मेटल्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट और फ्यू मेटल्स आर देयर. प्लीज़ फोकस ऑन द, हमें 2 कंडीशन याद करनी है. एक तो हमें डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की, either you use dilute nitric acid concept is will be there और एंड डाइल्यूट कंडीशन में ये कोल्ड रहेगा. और फिर दूसरा आपका है
concentrated nitric acid, hot, right? So these two, इसमें हम लोग अलग अलग हैं, अलग अलग आउटकम्स हैं, वो भी देखेंगे. Now children take this thing, we have metal reacts with nitric acid. Nitric acid जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं that is dilute, right? Give you oxidized product, water and nitric oxide. Now nitric oxide is NO. Now we have the metal that is copper, nitric acid, copper nitrate देगा भाई, नाइट्रेट पे कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट. वाटर है आपका प्लस NO, नाइट्रिक ऑक्साइड इज NO. यू हैव टू फोकस ऑन इट, बैलेंस इट अप. 3 लगा दो यहाँ पर, यहाँ 4 है, ये है 2 है, और ये है आपका 3 है, और ये क्या है 8 है. सो दिस वे यू हैव द ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट. दिस इज कॉपर नाइट्रेट. अगर टीचर आपसे पूछती है व्हाट इज़ द ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट, तो व्हाट यू विल राइट डाउन, कॉपर नाइट्रेट. इफ़ टीचर आस्क यू द गैस दैट इज ऑब्टेन्ड, सो नाइट्रिक ऑक्साइड इज़ द गैस दैट इज़ ऑब्टेन्ड. ठीक है, अब यहाँ क्लियर हो गया, ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है ये आपका. एक क्वेश्चन ये आपका क्लियर हो रहा है. एक आपका ये नाइट्रिक ऑक्साइड है जो गैस है. अब ऑब्जर्वेशन अगर टीचर आपसे पूछता है, ऑब्जर्वेशन, व्हाट इज़ द ऑब्जर्वेशन, सो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस is evolved and it is a colorless gas. This thing you have to keep it in mind. Now we can take some other example also. जैसे हमारे कोर्स में यहाँ कॉपर है, बाकी we don't have other metals over here. आपकी बुक में जिंक भी है, आयरन भी है. You are not supposed to learn that thing. That is out of course. We learn this thing only. Now the next question, the last part comes. जैसे मेटल है, नाइट्रिक एसिड है, ठीक है. अब नाइट्रिक एसिड है, और नाइट्रिक एसिड के केस में आप बिना दूसरा भी ले सकते हो कि आप डाइल्यूट कंडीशन ले रहे हो. ये ऊपर वाला तो था आपका डाइल्यूट है, लेकिन कोल्ड कंडीशन है. अब आप डाइल्यूट ले रहे हो एंड इट शुड बी हॉट. उस कंडीशन में यू विल गेट अ ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट, you will get a water and you will get a gas that is नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. देखो बेटा, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड समटाइम्स. अब जब कोई चीज़ डाइल्यूट और हॉट हो जाएगी तो वो समवॉट थोड़ी कॉन्सेंट्रेटेड की तरह भी बिहेव करेगी, ठीक है. तो उस कंडीशन में भाई हॉट होगी कोई चीज़, तो वाटर, एक्स्ट्रा वाटर है तो उसमें से निकल चुका है ना, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड, तो आउटकम्स जो है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाला है इसमें. तो आपने कॉपर लिया, यू टेक HNO3, गिव यू ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट. ये तो एक ही रहता है सब में, कॉपर नाइट्रेट, वाटर. सिर्फ आप देख रहे हैं कि द गैसेज आर चेंजिंग ओवर देयर. द नाइट्रिक ऑक्साइड जो कलरलेस थी, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है जो रेडिश ब्राउन इन कलर है, इट इज़ रेडिश ब्राउन इन कलर. गैस इज़ बीन ऑब्टेन. तो ऑब्जर्वेशन आपका रेडिश ब्राउन रहेगा. बैलेंसिंग नाउ यू कैन डू इट बाय योर ओन. सो यू कैन पुट इट 4 ओवर या फिर यहाँ पे आपका 2 और ये 2. So I think this is clear to you how this nitrogen dioxide is obtained. Now we have covered entire portion of it, nitric acid, because many things are been deducted, reduced. Please learn this video, copy down each and every step of it, and I think we have covered many things, so no issues on it. And now you are clear with it that what is the oxidizing nature of nitric acid, or why it go for it acts as an oxidizing agent. So everything is clear. What type of question is asked, that is also clear. In this video we have covered it, all the things, all the parts that was remaining in this chapter. Hopefully this chapter is clear to you. Please learn this much. Whatever I have made, I think 3 to 2 or 4 videos I have made, so entire chapter is been completed. So learn this portion, learn this much only, and when you are seeing the video, copy down each and everything, what I am speaking and what I have written. It's not like that कि whatever you are getting in the photos or this thing writing material, I am speaking also. So that portion also you have to write down in your notes.